Okay, thank you. I hope my screen is visible. Okay, that's great. That's great. Okay. So now let's start on something very good. Is that let's try to understand few somethings, okay? Today I will be teaching you some very essential topics of chemistry that will actually help you to understand things in a much easier way. Okay, let's go into that. First of all, Akshat, let me just take you into the confusion between compounds and elements. See, what is the basic difference between a compound and an element? How do you differentiate between them? Okay, define an element. If I ask you to define an element, you will see that it's defined that an element is a substance. What do I mean by substance? See, whenever you are looking at any molecular formula, okay, say calcium carbonate. So what is the molecular formula? CaCO3, or any formula, chemical formula of water like H2O, okay, or carbon dioxide, CO2, right? Any molecular formula that you are looking at is a substance. Over? Clear? Any chemical molecular formula that you are looking at, it's actually substance, right? Now, substance can be of two types. It can be Yes, either sir. element or a compound. So, when you are looking at a molecular formula, how will you understand that you are looking at an element or a compound? Because substance can only be of two types, elements and compounds. So, suppose you are looking at any formula, any molecular chemical formula. How will you understand? See, let's begin. If you see that inside that formula there are different names of elements, then immediately clarify yourself, or you can confirm that that's a compound. Okay, so suppose you are looking at a molecular formula, and inside that formula you can see there are a lot of elements, there are a lot of elemental names like carbon, oxygen, calcium. Lot of elements are there, which means what? You are looking at a compound. Okay, so if you are looking at a molecular formula which has more than two or three mixture of elements, that is a compound. For example, H2O. There are already two elements. See, H and O. So two elements are already there. H means what? Hydrogen. O means what? Oxygen. So already two elements are there. So more than one element means it's a compound. Clear? Yes, sir. And element, how you will identify? You will find only one type of atom are repeated, like Cl2. Cl, you know, chlorine. So Cl2. So how many kinds of atom can you find over here? Only one. Do you find anything other than Cl? No, which means this is an element. Okay, Cl2, H2, C2, O2, O3. These are all elements because you have only one kind of element, and that is repeated two times. O2, which means what? Two atoms of oxygen. This is an element. So found the difference between element and compound. Element means you will find only one name of element. Compound means you will find many names of different elements. Okay, clear? Yes, sir. Okay, now just let's look at that. See, this is one single hydrogen atom. Okay, now Akshat, we are trying to study where atom comes. We have learnt about compounds and elements. Then what is the significance of atoms? See, this is one single hydrogen atom. Can you see it on the screen? So that's one single hydrogen atom. Okay. Now, if I take many other hydrogen atoms like this is called element. See, so all are same type of atoms. Hydrogen. Here you can see pairs of hydrogen atom. जुड़वा है ना, दो दो करके देखो हाइड्रोजन एटम्स है. तो ये था एक सिंगल एटम. अगर इसी तरह की, मतलब ये जो एटम है, इनका अगर दोस्तों को मैं बुला लूंगा, समझ पा रहे हो ना? ये जो एटम है, अगर मैं इनकी दोस्त को बुला लूंगा, दोस्तों जो है, तो क्या होगा? एक ही तरह के होंगे. ये बन गया एलिमेंट. ठीक है.
और अगर 2-3 एलिमेंट एक जगह पे आ जाते हैं तो वो बन जाएगा कॉम्पाउंड। ये बन गया कॉम्पाउंड। क्योंकि देखो एकदम राइट की तरफ हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है ना, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्पाउंड। इसी को जब तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखोगे क्या पाओगे कि HCl, फॉर्मूला के अंदर क्या है, Cl भी है, क्लोरीन भी है और हाइड्रोजन भी है। मतलब दो तरह की एलिमेंट्स मिल गई, मतलब ये कॉम्पाउंड। और अगर एक तरह की एलिमेंट मिलेगा तो वो एलिमेंट, जैसे सिर्फ H या फिर सिर्फ क्लोरीन, वो है एलिमेंट। दो दो अगर मिल गया तो क्या हुआ, कॉम्पाउंड। ओके, क्लियर? Yes, sir. Now let's go to our reactions. Okay, there were certain kinds of reaction that we made a mistake in our exam. See, first of all, whenever you get an MCQ, the reason for giving you an MCQ is so that you can extract the complete information from the MCQ. Okay, जैसे मान लो कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, वहां पे दो चीज होने वाला है। फर्स्ट, two compounds have to be there. They will exchange their elements. Step 1, step 2. As a result, two new compounds will be formed. Okay? So in an MCQ, I gave both of them. What you did and what Jaideep did, you each of one choose only one option. You chose only one option that two new substances will be formed. Jaideep chose exchange will occur. But these two together makes the complete definition. So you have to choose option D, that is both A and C. ये बोथ वाला ऑप्शन जो है ना, इसको जरा ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं Okay, sir. हाँ, ये यहाँ पे मैंने सारी सारी रिएक्शन को एक विजुअलाइजेशन की फॉर्म में लिखी है। देखो पहले ये जो है ये है एडिशन रिएक्शन और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता, ए एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड है, बी एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड है। ये देखो क्या बन गया, रिएक्शन के बाद दोनों आकर जुड़ गए। मतलब क्या, ये तीसरा जो नई चीज जो हुआ ना, इसके अंदर ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। और ये क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया, मैंने एक रिएक्शन दिया कि कैल्शियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग कैल्शियम का कार्बोनेट, यू कुड नॉट आइडेंटिफाई। तुम वो आंसर नहीं कर सके क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा क्या करना चाहिए था, थोड़ा इसके अंदर घुस के देखना चाहिए था। देखो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या है, Ca, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। दोनों मिलने के बाद क्या फॉर्म हुआ है, CaCO3। अब देखो CaCO3 के अंदर कैल्शियम भी है और कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है कि नहीं, बोलो राइट। तो Yes, CaCO3, sir. हाँ, इसका मतलब ये क्या हुआ, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे मेरा लाल पॉइंटर अभी है। देखो ए और बी मिल गया, मिलके जो तैयार हुआ उसके अंदर ए भी है और बी भी है ना। तो यही है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसी का एक एग्जांपल था वो, कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो ये जो प्रोड्यूसेस बन के जो हुआ, मतलब जो प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर कैल्शियम भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मतलब क्या दोनों ही प्रेजेंट है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। ए और बी मिल गया, तीसरा जो हुआ उसके अंदर ए भी है और बी भी है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में बिल्कुल उल्टा होता है। एक कंपाउंड रहता है, वो तोड़ के दो अलग कंपाउंड्स में बांट जाते हैं, लेकिन वो जो दो अलग कंपाउंड्स तुमने निकाल लिया वो इसी कंपाउंड्स में से है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली होगा सी, ये होगा डी। अब देखो बिल्कुल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा। ओके, ठीक है। अक्षत अब तुम एकदम डाउन में चले आओ, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
देखो क्या हुआ यहां पे, इधर एक कंपाउंड था AB, मतलब जिसके अंदर दो एलिमेंट था। मैंने क्या बोला, कंपाउंड के मतलब क्या है, दो या तीन एलिमेंट्स जोड़ के एक कंपाउंड बनते हैं। तो देखो AB एक कंपाउंड है, ये किससे बनी हुई है, A और B से। दूसरा एक कंपाउंड है YZ। अब देखो इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। A के पास Z चली आई और YZ के पास B चली गई। देखो इसको बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। एक्सचेंज, ये वर्ड अपने दिमाग के अंदर रखना। एक्सचेंज मतलब डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है चारों रिएक्शंस। ये चारों रिएक्शंस में कुछ दिक्कत है तो बोलो। No, sir. Okay, so this is how you identify. I will ask you more questions on this later, not now. Okay, let's close this and go back to water. Okay, मैं और एक चीज करने वाला हूं अक्षर अगली क्लास से। जैसे मैं ग्रुप में क्वेश्चन दे रहा था लेकिन होमवर्क कोई कर नहीं रहा था, इसीलिए Yes, मैंने, sir. हाँ, तो ग्रुप में मैंने होमवर्क दे रहा था, कोई कर नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया कि अब एक थोड़ा और कुछ करने वाले हैं हम। वो है हर एक दिन मैं तुमको एक छोटा सा हिस्सा पढ़ने के लिए बोलूंगा। ठीक है, वो कहां से, सेलेना केमिस्ट्री से। वो छोटा सा हिस्सा तुम्हें सिर्फ पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे मैं तुमको बोल दिया, अगले दिन ही बोलूंगा कि वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब वाटर की जो चैप्टर है उसमें जो सेकंड पेज है, सिर्फ सेकंड पेज तुम्हें पढ़ के आना होगा। ओके, यू हैव टू रीड ओनली द सेकंड पेज। Okay, sir. Okay, so I will just ask you two questions at the beginning of the class. Okay, Okay, sir. if you can answer that question, you will be able to answer the question, because question that I will ask will be very very easy. Okay, Okay, just sir. check you have read it or not. If you can answer my question, very good. Class will start. If you cannot Sir, answer, after next class. yeah, from next class, not from this class. Okay, okay, sir. बिकॉज मैं तुम्हें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए बोलूंगा भी नहीं कि भाई तुम पूरा बुक पढ़ के चले आओ, ऐसे नहीं, सिर्फ एक पेज। ठीक है, जस्ट Okay, एक sir. one page every day, that's it. Okay, so let's get on. Okay, so Akshat, we were talking about what is called solution and how we can put salt or sugar into the water and it slowly gets dissolved, right? We also learned what is called saturation, that is that a certain amount of solute or solid can be put into water, but if you keep on adding that solute, after a certain time the solute won't get added, right? This is called saturation. So ये बहुत ही एक आसान चीज है समझने के लिए। जैसे तुम्हारा एक लिमिट है कि तुम कितने खा सकते हो, उसी वजह से जब तुम पानी के अंदर किसी चीज को डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, पानी बेसिकली क्या कर रहा है, उसको खा रहे हैं, है ना? तो पानी का भी एक लिमिट होना चाहिए जिसके बाद वो और नहीं खा पाएगा, उसी को बोलते हैं सैचुरेशन। सो सैचुरेशन इज अ पॉइंट वेयर यू कैन ऐड एनीथिंग टू द वाटर बट द वाटर विल नॉट एक्सेप्ट इट। ओके, यू विल सी दैट इट इज नॉट गेटिंग डिजॉल्व्ड, वो मिल नहीं रहा है, इट इज रोमिंग इनसाइड द वाटर सेपरेटली, इट इज नॉट गेटिंग डिजॉल्व्ड इनटू वाटर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। नाउ ये जो सैचुरेशन है, इस सैचुरेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब अगर किसी लिक्विड में सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मतलब और कोई चीज तुम मिला नहीं पाओगे, तो यहां पे हाँ, सो एट दिस पॉइंट वी कैन डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वी कैन इन्फ्लुएंस दिस सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर से इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मतलब ये चीज नहीं हो पा रहा है,
हम बाहर से ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हैकिंग। हैकिंग जानते हो ना, कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में तुम घुस नहीं पा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, बाहर से ऐसा कुछ कर रहे हो ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम का जो सिक्योरिटी है वो खुल जाए। बिल्कुल वही चीज हम केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। तो एक वाटर के अंदर तुम शक्कर डाल रहे हो, डालते डालते क्या होगा, सैचुरेट कर जाएगा, विच मीन्स यू कैनॉट ऐड एनी मोर शुगर। इफ यू ऐड दिस शुगर विल नॉट गेट डिजॉल्व, राइट? करेक्ट? सो कैन वी हैक दिस सिस्टम? Can we do something so that we can hack into water and open it, so that we can break all the rules and we can again add sugar? Can we do that? Yes, we can definitely do that. We can do that with the help of temperature. Temperature is our hacking system. It's like a password. If we can increase the temperature, automatically we can hack into water. Okay, you got it? Yeah. So saturation depends upon temperature. Okay, Akshat, clear? Yes, sir. Okay. So this is how we can hack into water. ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर हैक करते हैं, उसी वजह से, उसी तरीके से हम केमिकल सिस्टम के अंदर भी हैक कर सकते हैं। तो अगर पानी में तुम शक्कर मिला रहे हो और वो सैचुरेशन में पहुंच गए, वी कैन चेंज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज लाइक ए पासवर्ड। जैसे ही तुम टेम्परेचर को चेंज कर दोगे, क्या हो जाएगा, वो पासवर्ड खुल जाएगा। मतलब तुमने हैक कर चुके हो वाटर को। अब वाटर ज्यादा सॉल्ट लेगा या फिर ज्यादा शक्कर लेगा। ये क्यों हो रहा है बोलो? क्योंकि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द स्पेस विद इन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बिकम लार्ज। सॉल्वेंट मतलब क्या, पानी है। तो जैसे ही तुम पानी को गर्म करोगे, पानी के अंदर क्या होगा, ज्यादा स्पेस क्रिएट होगा। पानी क्या करेगा, टेम्परेचर पहले ले लेगा, लेने के बाद उनका जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर चला जाएगा, तो ज्यादा स्पेस क्रिएट होगा। तो उस स्पेस के अंदर अब तुम और भी शक्कर डाल सकते हो। दिस इज द रीजन व्हाई यू कैन हैक इनटू वाटर। ओके, सो नाउ वी कम इनटू अनदर पार्ट which is called solubility. Solubility as in saturation is exactly the same. Okay, saturation means that you cannot add any more solute, whereas solubility means it's just the symbol, just the other part of saturation. It means that it was found that different substance, अलग अलग चीज अलग अलग पॉइंट में सैचुरेट होते हैं। मैंने क्या बोला, अलग अलग चीज अलग अलग पॉइंट में सैचुरेट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास अगर तीन अलग चीज है, शक्कर, सॉल्ट एंड मैग्नीशियम पाउडर, तो तुम हर एक चीज को पानी के अंदर डाल के देख रहे हो कि कब सैचुरेशन तुम्हें आता है। तुम ये देखोगे कि सॉल्ट जो है ना, उसका सैचुरेशन देर में आते हैं। मतलब सॉल्ट बहुत देर तक पानी के अंदर घुस पाते हैं, उसके बाद सैचुरेट होते हैं। लेकिन मैग्नीशियम पाउडर कुछ, मतलब चम्मच डालने के बाद ही वो सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, और शुगर जो है, मतलब शक्कर, वो इनके बीच में रहेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, तो अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग, मतलब अमाउंट में तुम्हें डालना पड़ेगा ताकि सैचुरेशन मिले। सैचुरेशन जब मिल जाएगा, तुमको कैसे पता चलेगा? सिंपल, तुम डालोगे लेकिन वो क्या नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, Yes, पहले sir. जब तुम शक्कर डाल रहे हो वो क्या होगा, गायब हो जाएगा, पानी के अंदर जाके गायब हो जाएगा। अब तुम शक्कर डाल रहे हो लेकिन वो गायब नहीं हो रहा है, मतलब क्या, सॉल्यूशन सैचुरेट कर चुके हैं। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग सैचुरेशन पॉइंट है, इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी हम किसको मेजर करते हैं? सॉल्यूट जो होता है, मतलब सॉलिड सब्सटेंस जो होता है, या फिर गैसियस सब्सटेंस जो होता है, उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी हम मेजर करते हैं। मतलब तुम्हें कितनी चम्मच शक्कर डलनी चाहिए ताकि सैचुरेट कर जाए, वो होगा शक्कर की सॉल्युबिलिटी।
ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ पानी में तुम्हें कितनी चम्मच मैग्नीशियम पाउडर डालना चाहिए ताकि वो सैचुरेट कर जाए? ये बन जाएगा मैग्नीशियम पाउडर की सॉल्युबिलिटी। जो जितना ज्यादा चम्मच डालना पड़ेगा सैचुरेट करवाने के लिए, उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो समझ में आया? ज्यादा सॉल्युबिलिटी और कम सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? तो सॉल्युबिलिटी किसका होता है? हमेशा सॉल्यूट का। जो तुम पानी में डाल रहे हो, पानी की सॉल्युबिलिटी नहीं होते। जो तुम पानी के अंदर डाल रहे हो उसका सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है। तो शक्कर अगर तुम्हें 4 चम्मच डालनी पड़े और मैग्नीशियम पाउडर तुम्हें 1 चम्मच डालनी पड़े ताकि सैचुरेशन आ जाए, तो शक्कर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। ओके, सो द डेफिनेशन इज, लेट्स गो इनटू द स्लाइड। हाँ देखो, स्लाइड की तरफ देखो। द सॉल्युबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कैन गेट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी की सॉल्वेंट के अंदर तुम कितने सॉल्यूट डाल सकते हो ताकि वो सैचुरेट कर जाए, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। बिकम सैचुरेट, दैट यू मस्ट पुट इनसाइड, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। नाउ, जैसे मैंने तुमको बोला, टेम्परेचर बढ़ा देने से सैचुरेशन पॉइंट चेंज हो जाएगा। तुम क्या होगा, हैक कर लोगे और भी ज्यादा सॉल्ट डाल पाओगे। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमने क्या सीखा? solubility and saturation both depends upon temperature. We will read it in the next slide. Okay, so we must add something to our definition. अब ये भी जो definition हमने पढ़ लिया, ये complete नहीं है, हमें कुछ add करना पड़ेगा। वो क्या है? वो है at fixed temperature। तो definition क्या हुआ? 100 ग्राम सॉल्वेंट में तुम्हें कितने चम्मच या फिर कितने ग्राम सॉल्यूट डालना पड़ेगा एट ए फिक्स टेम्परेचर ताकि वो सैचुरेट कर जाए, इसी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो एक फिक्स टेम्परेचर तुम्हें पहले तय कर लेना पड़ेगा कि ना भाई, हम 25 डिग्री में देख रहे हैं, तो 25 डिग्री के लिए वो होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है। 28 डिग्री में वो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, अगर टेम्परेचर को हिला दोगे सॉल्युबिलिटी भी हिल जाएगा। So solubility depends upon temperature. Okay. अब जो सब्सटेंस जितने ज्यादा सॉल्युबल होगा उनका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो जो सब्सटेंस बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, हाई सॉल्युबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल। जो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता, जैसे पानी के अंदर तुम सैंड डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। जो हाईली सॉल्युबल है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबल, जो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल, और जो बीच में है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेयरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, ये 3 चीज देख लो यहां पे। ये जो येलो वाला बॉक्स है उसके अंदर देख लो। ओके, ए हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस इज वन which gets completely soluble or dissolved, that is called soluble. ओके, डिसॉल्व लिख देता हूं तो आसानी होगा। A substance that does not get dissolved is called insoluble. A substance which has a solubility between high and low is called sparingly soluble. Sparingly soluble मतलब क्या है, कुछ देर तक वो डिसॉल्व होगी उसके बाद नहीं होगी। मतलब एकदम इनसॉल्युबल भी नहीं है और पूरे तरीके से सॉल्युबल भी नहीं है, इसको हम बोलेंगे स्पेयरिंगली सॉल्युबल। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, एनी डाउट कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? Yes, sir. तो सॉल्युबिलिटी क्या चीज है, समझ में आई? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और स्पेयरिंगली सॉल्युबल, इसका मतलब समझ में आया? स्पेयरिंगली। Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसी स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब हैक, कैसे हम हैक कर सकते हैं। देखो,
factors affecting solubility of a substance. Okay, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, नहीं तो तुम्हें दिख नहीं पाओगे। देखो क्या क्या फैक्टर्स है। चीज ऐसा है कि, तो इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि हैक हम कैसे कर सकते हैं, राइट। सो ये जो सॉल्युबिलिटी है कि एक सब्सटेंस एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो उस सब्सटेंस का जो सॉल्युबिलिटी है, क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं? इसी का जो मतलब आंसर है वो इस स्लाइड में है। ओके, तो अगर वो हम ढूंढे तो ये मिलेगा कि since this chapter is about water, we will not talk about any other liquid. Especially in water, क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब पानी के अंदर तुम कुछ मिला रहे हो और सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मतलब क्या, पूरा सैचुरेट कर गया। अब अगर तुम्हें फर्दर उसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ये कब एप्लीकेबल है, जब तुम पानी के साथ कुछ सॉलिड जैसे पाउडर लाइक सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हो, तब ये वैलिड है। ओके, सो फॉर सॉलिड्स solubility of a solid substance in water increases with increase in temperature. इसीलिए मैंने शॉर्ट में साइड पे लिख दिया है कि solubility is directly proportional to temperature. किसके लिए, सॉलिड के लिए। और गैस के लिए क्या होगा, जैसे तुम पानी के अंदर किसी गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, इस बार बिल्कुल उल्टा होगा। मतलब जैसे तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, देखोगे सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन जितना डिसॉल्व हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ा देने के बाद उतना डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ओके, लर्न दिस पॉइंट स्लोली। Okay, how can we hack into the solubility property of a liquid? So you are trying to add a solid solute to water. What will happen if you increase the temperature? If you increase the temperature, you will see that you can add more solute, which means what? Solubility has definitely increased. So if you increase the temperature, solubility will increase. That is for solid. For gas, it's opposite. If you increase temperature, solubility will decrease. So for gas, solubility is inversely proportional to temperature. Got it? You know the meaning of directly proportional and inversely proportional. You already know it. So solubility is directly proportional to temperature in case of solid. In case of gas, solubility is inversely proportional to temperature. Okay. Now, in case of gas, something else happens. What is that? See, gas is a substance whose volume can change, right, Akshat? In case of solid, the volume can never change because solid means it has a fixed volume, occupies a fixed space. But in case of gas, the volume can change, right? How? If you can put a gas under high pressure, the gas will compress. Okay, so this extra property of gas gives us one more rule. We were learning rules, right? Rule is solubility of gas is decreasing with increasing temperature. That is the number one rule. Number two rule, solubility of gas also increase if the pressure is increased. So pressure comes in. In case of solid,
प्रेशर की कोई बात नहीं हो रहे थे, लेकिन जब भी तुम गैस में आ गए, गैस के लिए प्रेशर भी उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो सॉलिड्स के ऊपर सिर्फ टेम्परेचर की इफेक्ट पड़ती है, लेकिन गैस के ऊपर टेम्परेचर का भी इफेक्ट है और प्रेशर का भी इफेक्ट है। और इसी को हम एक लॉ के रूप में बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। व्हाट इज दैट? इन अ फिक्स टेम्परेचर, solubility of a certain gas will increase if you increase the pressure। जैसे तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे, उनका solubility भी इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये चीज समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Okay, so no questions from this part. So if this part is clear, see this slide is a bit रूलिंग साइड। ओके, इस स्लाइड के अंदर क्या है? सिर्फ रूल्स है। वो रूल्स तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसके हिसाब से तुम बहुत कुछ सीख भी सकते हो। ठीक है, कि टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है। ओके ओके ओके, सो लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट। आई वाज थिंकिंग ऑफ चेंजिंग दिस स्लाइड, बट लेट्स हाँ ओके, सो there are other factors. Okay, Akshat, if you have understood that part, then let's move to the next part. Apart from temperature and pressure, there are two physical factors which also affect this. Physical factor means uh, factors which you can influence by simply doing something to the solution. Let me just give you an example. Stirring. If you take a spoon and stir the liquid, then solubility will increase. Why? Because if you are stirring the liquid, what is happening? You are disturbing the liquid. तुम एक चम्मच लेके पानी के अंदर डाल के चम्मच को घुमा रहे हो, तो क्या होगा? पानी जो स्थिति में थे वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट ज्यादा घुल मिलने की मौका मिल जाएगा उनको, तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। क्योंकि तब क्या होगा? ज्यादा सॉल्यूट पानी के अंदर जाने की मौका मिलेगा उनको। ये एक है। और एक है कि अगर तुम ऐसे एक सॉल्यूट ले लो जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटी है, जैसे सॉल्ट। सॉल्ट का एक एक दाने का जो साइज है ना, बहुत ही छोटा होता है। इसी वजह से सॉल्ट ज्यादा घुस पाता है, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा उतना ज्यादा तुम क्या कर पाओगे? उसके अंदर डाल सकोगे। जैसे एक रूम के अंदर, मतलब अगर 4 मोटे आदमी को तुम डाल दोगे तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम पतली जो है उनको डालोगे तो ज्यादा उस रूम के अंदर तुम डाल सकते हो। 10-15 आदमी तुम डाल सकते हो, लेकिन अगर वही आदमी मोटा होगा तो 10-15 तुम नहीं डाल सकते हो। शायद 6 और 7 आदमी डालने के बाद क्या होगा? रूम फुल हो जाएगा। सेम थिंग हैपेंस फॉर ए लिक्विड। If you are pouring solute inside the solvent, then what will happen? If the size of the solute molecules are small, then more solute can go inside the liquid. This is what is explained in that point. See, what are the factors that can influence solubility? So, if you are taking a solute whose particle size is very, 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 very small, what will happen? More of that can go inside the solvent. So these are the other 2 points which can influence solubility. So these are the other 2 hacks. The main hack is temperature, but these are the other 2 hacks. They don't always work, but the temperature and pressure, these hack always works. Any question from here? Tell me. ये स्लाइड सिर्फ No, sir. okay, No doubt. yeah. So this slide I will send you have to study. Okay, what will happen in case of solid? Solubility is directly proportional to temperature in case of solid। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ तो solubility भी बढ़ेगा। गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ तो solubility घटेगा, लेकिन गैस के लिए और एक चीज क्या है? एक्स्ट्रा है। वो क्या है? प्रेशर। मतलब गैस में सिर्फ टेम्परेचर से ही तुम हैक नहीं कर सकते,
प्रेशर से भी हैक कर सकते। इसका एग्जांपल दे दूं, कोल्ड ड्रिंक्स का जो बोतल होता है उनके अंदर देखोगे, जब भी तुम खोलोगे एक हवा निकालता है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर हाई प्रेशर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उनके अंदर डाले जाते हैं। इतने प्रेशर के अंदर रहते हैं, इसीलिए वो गैस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डिसॉल्व होकर रहते हैं। जैसे ही तुम कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन खोलते हो, क्या होगा, प्रेशर निकाल जाएगा, मतलब क्या, प्रेशर कम हो जाएगा। तुरंत वो गैस पानी के अंदर से बाहर आ रहा है, वो और डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतना गैस पानी के अंदर डिसॉल्व होगा। प्रेशर घटा लोगे तो डिसॉल्व गैस बाहर चले आएंगे। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, सो गैस के लिए एक चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या है, प्रेशर। प्रेशर के जरिए भी तुम हैक कर सकते हो। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतने गैस पानी के अंदर तुम घुसा पाओगे। ठीक है, ओके, सो नाउ दैट वाज द मेन पार्ट, nothing more, nothing more. Now let's go to a absolutely new part. This is a new, okay, अक्षत, अभी तक जो हम पढ़ लिया दैट वाज अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में जो था वो हम आज खत्म किया कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर कुछ डाला जाता है जिसका नाम है सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर क्यों जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, जगह होते हैं। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। अब तुम क्या क्या हैक कर सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के अंदर क्या घुस सके। इसको हम क्या बोलते हैं, हैक्स। हैक्स मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वो है फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कुछ नहीं, तुम कितना सॉल्यूट, कितने ज्यादा चीजों को पानी के अंदर घुसा पा रहे हो, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा घुसा पाओगे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। और तुम क्या क्या तरीकों से सॉल्युबिलिटी को क्या ज्यादा एनहांस कर सकते, बढ़ा सकते, वही हम पढ़ लिया। तो ये पूरा चीज थे सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर किसी भी चीज सॉल्यूशन के बारे में समझ में नहीं आया तो बोलो। एक चीज याद रखो, मैं चैट में लिख रहा हूं, ये तुम्हें कल, कल नहीं परसों पहले रीडिंग दे के आना पड़ेगा। ओके, लुक Sir, एट द, which page number? या आई एम टेलिंग यू व्हिच पेज। वेट, सेलेना Sir, के, next class you will ask. yeah, at the beginning of the class I will ask you just how many questions, 3 questions, and वो 3 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन क्या तुम आंसर ही नहीं दे पा रहे हो, वैसा नहीं। तुम बड़ी आसानी से धीरे धीरे टाइम लेके पढ़ लोगे वो एक पेज, बस तुम सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। और अगर तुमने, Sir, which page, sir? हाँ, या आई एम टेलिंग यू, दिस इज पेज 37। ओके, कैन यू सी, या देख पा रहे हो, यह है 37। इसमें तुम्हें क्या क्या करना होगा, इसमें तुम्हें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। और 38 में सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है और सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स क्या है, ये तुम्हें सिर्फ थोड़ा पढ़ लेना पड़ेगा। ये दो चीज, कॉन्सेंट्रेशन, Sir, only solubility factors and concentration of a solution. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, और यहां पे आके सॉल्युबिलिटी एंड ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। Okay, sir. These two things, nothing else I will ask. Okay? Okay, sir. Okay, Okay. sir. Okay. So from today our preparation, Bye. या हम हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ओके, चलो बाय Yes, sir. Bye, sir. Thank you, बाय, sir. थैंक यू।